Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mio, your teacher, and today I'm going to discuss with you vocabulary test number 10. We have already attempted test number 9 and I'm sure you will have done better today. So let's see how have you performed. Yes dear students, let's start with the MCQs. So first of all, read each sentence and determine the meaning of the word using cross sentence clues or your prior knowledge. Dear students, meaning in context होते हैं, ये आमतौर पे sentence के लिहाज से हमने देखना होता है. Is it clear? And let's see how we have done. MCQ number 116. The athlete completed his routine with a level of celerity that even the harshest of the judges. So sentence is about athlete and level of celerity. Celerity means speed. अब उसने कोई ऐसी एक्टिविटी की है स्पीड के साथ, even the harshest of the judges. Here dear students, in this sentence even is a hint that is giving us contrast signal. और उससे आगे लिखा हुआ है harshest. Now harshest judges, क्या हत्ता के harshest judges, it means here we shall use some contrast signal word. Let's see the options. Option A, legalized, lawful, legitimate होता है. Option B, pestered होता है, annoyed, तंग करना, harassed. Option C, astounded, astonished, surprised, हैरान कर देना. Checkered means vary with contrasting elements, difference नजर आना. So dear students, क्या ऐसा किया कि harshest judges भी क्या हो गया, कितनी स्पीड उसने शो की है. तो this shows that even the harshest के वो भी impress हो गए. So that is a hint that we have to select such word which impressed them, astonished them, his speed, due to his speed. So option C, astounded, is our right answer dear students. We have selected this word due to this contrast signal word that they were impressed. harsh थे लेकिन उसकी speed इतनी ज़्यादा थी कि वो भी impress होने पे मजबूर हो गए. So this is called contrast signal, hint or clue for us. Next, MCQ number 117. She dash her handkerchief from the train window as a goodbye. As a goodbye dear students, this is hint. एज अ गुड बाय, ट्रेन विंडो से गुड बाय करना, तो हमने सेंस जज करनी है. तो हैंकरचीफ जाहिर है कि विंडो से बंदा सर तो नहीं बाहर निकालता, तो श्योरली कोई हैंकरचीफ क्या किया होगा. लेट्स सी. ऑप्शन ए, स्टिच्ड. स्टिच्ड मींस सिउ, तो सिलाई तो नहीं की जा सकती ट्रेन में. फ्लटर्ड मींस बीट, लहराना, फड़फड़ाना. टोर टीयर की सेकंड फॉर्म है. रिप्ड, फाड़ना. इट इज नॉट सुटेबल हेयर. इट इज नॉट welcome gesture of goodbye. Folded means creased. It is not also suitable. So dear students, right away option B, fluttered, is our answer because waved, फड़फड़ाने की सेंस में, लहराने की सेंस में यूज होता है. So this is our right answer. MCQ number 118. Because she was not nice. Here sentence is starting with because and it describes cause and effect. Because she was not nice. Now what is happening? The dash girl had few friends. Dear students, you must have read nice नहीं है. अब इसकी जब when a person is not nice तो result क्या होगा उसका, जरा बताएं मुझे. डैश गर्ल, तो ऐसा बंदा जो खुद नाइस नहीं है, इसको कहते हैं. हमें एक हिंट भी मिल रहा है और उसका इफेक्ट है होगा कि वो गर्ल किस तरह की होगी. और एक और देखें, फ्यू फ्रेंड्स. ये जो फ्यू है, फ्यू एंड अ फ्यू का डिफरेंस समझ लें. फ्यू मींस नेगेटिव, ना होने के बराबर, बहुत ही थोड़े. अ फ्यू होता है चंद एक, ये पॉजिटिव, थोड़ी बहुत तादाद में जब हो तब यूज करते हैं. नाइस नहीं है,
किस तरह की गर्ल है जिसके फ्रेंड भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो हमें ऑप्शन मिल गया कि नेगेटिव जो है हमारा जुमला चल रहा है। ऑप्शन ए ह्यूमेन, ह्यूमेन कहते हैं केयरिंग और काइंड को, ऐसे बंदे के तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ऑप्शन बी क्रेवन, क्रेवन कवर्डली और गटलेस, बुजदिल को कहते हैं, ब्रेवरी का कोई इसमें एलिमेंट नहीं है। ह्यूमेंगस, ह्यूमेंगस मीन्स लार्ज कोलोसल। ऑप्शन डी हॉटी, हॉटी कहते हैं प्राउड एरोगेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाहिद वर्ड है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, उसके दोस्त कम हैं, वो नाइस नहीं है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस, ऑप्शन डी हॉटी प्राउड एरोगेंट, तकब्बर करने वाला, ऐसा बंदे से लोग दूर भागते हैं। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। 119, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर दैट आइडेंटिफाइज द होमोफोन्स। होमोफोन्स आ गए, पेयर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है। 119 MCQ number 119. The charity uses pictures of sick children on its website to. Charity है और वो pictures को use कर रही है to dash donations. So to donations. Charity, what is the purpose of charity? वो donation देते हैं, donation निकलवाते हैं लोगों की जेब से, from caring people, ऐसे लोग। So हमें hint मिल गया कि charity वाले donations निकलवाते हैं। Option A illicit, illicit means illegal, and again come to is a hint that there will be a verb, ये हमारा हिंट है कि वर्ब है। illicit जो है एडजेक्टिव है, ये फौरन हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। illicit होता है निकलवाना, provoke, cause, this is a verb, this is under consideration answer। ऑप्शन सी डोनेट, डोनेट कंट्रीब्यूट करना, बेस्टो, चैरिटी वाले डोनेट करते हैं या डोनेशन लेते हैं, तो इस वजह से हमारा, क्योंकि चैरिटी खुद वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डोनेट नहीं करते, वो तो डोनेशन लेते हैं। दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड। रीइंबर्स मींस रीपे, कंपनसेट, तलाफी करना, पेमेंट करना दोबारा से। सो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट लीव्स अस विद ऑप्शन बी एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है प्रोवोक, निकलवाना, उगलवाना किसी की जेब से, किसी को इस तरह से मोटिवेट करना। सो ऑप्शन बी is our right answer because there is 2 before that. Is it clear? That is a hint for us, and donations को निकलवाने के लिए हमने इसको यूज किया। Next one, 120. The king bowed to the commoners who had saved his life in an ultimate display of dash. The king bowed, इस तरह से bow, झुकना, अदब एहतराम का इजहार करना, कॉमनर आम बंदा। इसमें who had, who वाला हिस्सा जो है, who had saved his life in an ultimate display of, who वाले हिस्से से जो शुरू हो रहा है, ये वाला जुमला हिंट है कि किस तरह का बंदा होगा जिसने लाइफ सेव की है। अल्टीमेट डिस्प्ले ऑफ, ऑप्शन ए ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मीन्स डिसग्रेस, ह्यूमिलिएट होता है किसी की इंसल्ट करना, वहां से निकला है। डिसग्रेस, बेइज्जती करना किसी की, उसका नाउन है ये। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज आल्सो नाउन एंड इट मींस मॉडेस्टी, आजिजी, इंकसारी। कॉन्जेक्चर, कॉन्जेक्चर किसी भी गेसवर्क को कहते हैं, एस्टिमेशन को कहते हैं। डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स स्टैग्नेशन, बोर्डम, खास तौर पे जो हो ऐसी हालत को कहते हैं डिप्रेशन की हालत में जब बंदा हो। इज इट क्लियर? तो जरा देखें जी, हु हैड सेव्ड हिज लाइफ इन एन अल्टीमेट डिस्प्ले ऑफ ह्यूमिलिटी, मोडेसिटी, आजिजी, इंकसारी। तो ये जो है बो, झुकना, कि ऐसा बंदा जिसने आजिजी ने उसकी लाइफ बचाई। सो दैट इज अवर ऑप्शन बी। यस डियर स्टूडेंट्स, come to next MCQ number 121. The president knows his psychiatrist is a dash who will never reveal his secret. So we shall move to next board to explain this MCQ. Yes, dear students. The president knows his psychiatrist. Psychiatrist is a person who studies nervous disorders. ज़हनी किसी को परेशानी है तो उसको स्टडी करता है। Is a dash who will never. Now this sentence, who will, students, this part is called explanatory part or definition, defining part. ये हमें बता रहा है, हिंट दे रहा है, who will never reveal his secret. Who will
never reveal. So this is the word where our answer is hidden. जो किसी का जो राज नहीं बताता वो कैसा बंदा होता है? ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल होता है इंटीमेट, प्राइवेट. ऑप्शन बी इनफिडल. इनफिडल होता है डिसबिलीवर, दहरिया, मजहब से रूगर्दानी करने वाला, मजहब से गद्दारी करने वाला. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट होता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ अश्योर्ड हो, पॉइज्ड हो. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट ये होता है जी फ्रेंड, बडी, चम, इंटीमेट, ऐसा करीबी दोस्त जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकें. महरम राज, जो आपके राज को अपने पास आप शेयर कर सकें और वो रखे, आगे ना बताए. तो मैंने क्या बताया था? Who will never reveal, जो नहीं बताएगा. ठीक है. So this is option D is our right answer. इसमें हमें इस जुमले में एक्सप्लेनेटरी पार्ट मौजूद था जिसकी मदद से हमने आंसर को लोकेट किया. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर. सिनोनिम सेलेक्ट करना है ऑफ द फॉलोइंग, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन MCQ नंबर 122. अपरेंटली. अपरेंटली मीन्स सीमिंगली, डिसेप्टिवली, जाहिरी तौर पर, एविडेंटली. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ए सीमिंगली. सीमिंगली भी मैंने मीनिंग में बोला ही था इसका मीनिंग है, तो ये हमारा आंसर है. अपरेंटली. वैसे बाकियों को भी देखते हैं. टिमिडली. टिमिडली होता है टिमिड, शाई और नर्वस होता है. टिमिडली, शाइली, नर्वसली, ये आंसर नहीं है. स्कॉर्नफुली. स्कॉर्न मीन्स हेट, हेट्रेड, नफरत से भरा हुआ, नफरत अंगेज अंदाज में. दिस इज नॉट अवर आंसर. Actually is also not our answer. Dear students, option A, seemingly, is our answer. Let's come to the next one. Bewilderment. Bewilderment is a noun. Bewilder का मतलब होता है हैरान कर देना. Confusion, bafflement इसका मतलब है. Serenity, option A. Serene होता है peaceful, tranquil. Serenity भी उससे निकला है. Desertion. Desertion. Desert होता है dear students तन्हा छोड़ देना किसी को. Abandon इसका मतलब होता है एब्सकाउंडिंग, किसी जगह से फरार हो जाना. क्लैरिटी लुसिडिटी को कहते हैं, क्लियरनेस को कहते हैं. बैफलमेंट हैरानगी. तो दिस इज आवर आंसर डियर स्टूडेंट्स. स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको टिक करेंगे. बैफलमेंट का मतलब भी हैरानगी, बिल्कुल सरप्राइज, कंफ्यूजन. ओके, नेक्स्ट वन 124. MCQ नंबर 124. कैपेशियस. कैपेशियस डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वर्ड. यू माइट हैव रेड दिस वर्ड. कैपेसिटी. कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा कि, और OUS. OUS मेक्स एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव यूज करने वाले के. कैपेसिटी कहते हैं स्पेस. OUS कैपेशियस उसी से निकला लफ्ज है ये डियर स्टूडेंट्स. ओके, स्पेस वाला, जिसके अंदर ज्यादा स्पेस हो. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मीनिंग्स डियर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. तो इसका मीनिंग हमें पता चल गया कि डेट इज रूमी, डेट हैज कैपेसिटी, डेट इज स्पेशियस. ऑप्शन ए एम्पल. एम्पल मीन्स प्लेंटी, सफिशिएंट, ज्यादा, एक्सेसिव. ऑप्शन बी डेपर्ड. डेपर्ड होता है स्पेकल्ड, स्पॉटेड, दागदार. देयर आर समटाइम डेपर्ड एनिमल्स. लेपर्ड इज अ डेपर्ड, हैज अ डेपर्ड स्किन. क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड होता है ओवर क्राउडेड, कन्फाइंड. बाज़ दफा मसल क्रैम्प हो जाता है और वो उसका रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट. क्रिपल्ड. क्रिपल्ड डिसेबल्ड को कहते हैं, पैरालाइज्ड को कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, क्रिपल्ड भी और क्रैम्प्ड, डेपर्ड तो सूट नहीं कर रहा, बाकी दोनों नेगेटिव मीनिंग है. एम्पल इज द आवर राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स. ऑप्शन ए. 125. डिस्कॉन्सोलेटली. अगेन डियर स्टूडेंट्स, break the word, find the meaning. So disconsolately, I am breaking this word. Here, look at the board. You will have read this word very much. ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. कंसोल, दिलासा देना, तसल्ली देना. तो ये इस तरह से हमने लफ्ज को तोड़ना है, बीच में प्रीफिक्स को अलहदा कर देना है. नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स लगेगा, मीनिंग को उल्ट कर देगा. तो डिस्कॉन्सोलेटली का मतलब हो गया अनहैप्पीली, बगैर तसल्ली के. ऑप्शन ए
Contentedly, ये तो इसका एंटोनिम है, इसको रिजेक्ट कर देंगे. Content होता है कनात पसंदी के साथ, ठीक है, हैप्पीली, लेकिन इधर डिस लगा हुआ है, हमने डिस के लिहाज से मीनिंग देखना है. Solemnly means seriously, gravely. Dejectedly, ये होगा जी हमारा आंसर. Dismally, miserably, लेकिन ऑप्शन डी को भी देखते हैं. Ambiguous, ambiguous होता है vaguely, dubiously, जो चीज क्लियर ना हो. So dear students, right away option C, dejectedly is our answer. Exude, exude पहले भी मीनिंग में जब बताया था कि exude ex का जो है वो लफ्ज आउट की सेंस देता है, ठीक है. Exude, radiate, display. ऑप्शन है एक्साइल. एक्साइल का मतलब भी सेम वर्ड, इसी एंगल का मतलब है. एक्साइल होता है जिला वतन, बैनिश, मुल्क से बाहर निकाल देना. एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होता है टू एनग्रॉस. एक तो होता है ना सोचो में गुम, एब्जॉर्ब. एक होता है एब्जॉर्ब, जज़ब करना किसी चीज को. फैसिनेट. रेडिएट, रेडिएट में भी एमिट, डिस्चार्ज, तो इसमें भी बाहर निकलने का एलिमेंट मौजूद है. प्रोट्रूड मीन्स प्रोजेक्ट, एक्सटेंडेड. स्वेल्ड, ओवरहंग, बाहर को निकला हुआ, फैला हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, radiate is our answer because it is also a verb, and this is the right option C. Flicked, flicked का मीनिंग बताया था आपको, ब्रश्ड, हल्का सा टच करना, एंगल को, किसी चीज के डायरेक्शन को चेंज करना हल्के से टच से. क्विक एंड शार्प टच होता है ये. ब्रश्ड, ग्लैंस्ड. ऑप्शन ए. क्लिक्ड, क्लिक्ड होता है टिक करना. ऑप्शन बी. ग्रेज्ड, grazed means touch, browsed, touch lightly. ऑप्शन सी. फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड इसका लफ्ज मिलता जुलता ठीक है, लेकिन स्पार्कर्ड, टिमटिमाना जिसे कहते हैं. ग्लिमर्ड, मूव अनस्टेडीली, द फ्लेम अगर स्टेडी नहीं है तो कहेंगे फ्लेम फ्लिकर्ड. गेज्ड, गेज्ड मीन्स लुक्ड, स्टेड, लुक कॉन्स्टेंटली, घूर कर देखना. सो डियर स्टूडेंट्स, टच के सेंस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ग्रेज्ड is our right answer. Both means touch lightly. 128. Glared, glared, scowled, stare, look angrily, गुस्से से मुसलसल देखे जाना, जिसे कहते हैं घुरियां डालना, बाज दफा हम इससे यूज भी करते हैं. Paired, P-A-R-E-D, paired, trimmed, छीलने को कहते हैं, राइट आंसर नहीं है. Stared, straight forward, देखने का अंदाज है. Stare also means look constantly, मुसलसल घूर कर देखे जाना. This is possible answer. Absorbed का मतलब engrossed, सोचों में गुम. And reflected होता है reproduced. So dear students, stared is our right answer. Both are styles of looking angrily, गुस्से से मुसलसल देखना. Next one, 129. What we have to do again, statement, another new question. Choose the word that is most opposite. Antonym select करना है dear students. Come to the options. Anxieties means worries, concerns, परेशानियों को, फिक्र, तशवीश को कहते हैं. ऑप्शन ए. लम्प्स, लम्प्स, बम्प्स, स्वेलिंग, पेड़ा किसी चीज का, जैसे लंप ऑफ बटर आप कह सकते हैं. Concerns, concerns means worries, anxieties. This is its meaning, not antonym. Reassurance, reassurance means दोबारा से किसी को यकीन दिलाना, एश्योर करना, comforts. This is close. Stoppages means strikes, go slow, बार बार वक्फा ठहराव आना. So dear students, C option is our right answer. उसका मतलब तशवीश और इसका मतलब तसल्ली, दिलासा देना. This is right antonym. 130. Comprehension, comprehension का मतलब अंडरस्टैंडिंग, ग्रैस्प किसी चीज की समझ. ऑप्शन देखेंगे. परप्लेक्सिटी होता है कंफ्यूजन, बैफलमेंट, किसी चीज को एक समझ आ रही है एक नहीं आ रही है. This is closest. Let's see the other options as well. Grasp, grasp means hold, clutch, understand, ये इसका synonym है. Prevention, deter, anticipation, रोकना किसी चीज को. Compunction, compunction means regret, scruple, anxiety from any guilt, किसी जुर्म की या तशवीश लाहक होना. सो इखलाकी तौर पे जब बंदा कोई जुर्म करता है तो उसके अंदर इनर सेल्फ जो होता है उसको वो मलामत कर रहा होता है. That is called compunction. So dear students, comprehension का right antonym जो है ऑप्शन ए perplexity है. That is our right answer. Dilapidated, मुश्किल लफ्ज है, तोड़ रहा हूं इसको भी. Look at the board.
Look at the board, dear student. Lapid means stone, clear? Stone. Dilapidated, stoned, ऐसी चीज जिसको आप पत्थर मार मार के उसको कमजोर कर दें, ये verb बन गया. Is it clear? Stoned. तो जो चीज को आप पत्थर मारेंगे जाहिर है वो कमजोर होगी, decrepit होगी, weak होगी. Is it clear? वो destroy हो जाएगी. ऑप्शन ए ferocious, fierce को कहते हैं, खूनख्वार. ऑप्शन बी pristine. Pristine means unspoiled, untouched. Option C decrepit. Decrepit also means dilapidated, जिसको कमजोर कर दिया जाए मार के. Crumbling. Razed means also destroyed, demolished. So dear students, right antonym is option B. Pristine means unspoiled, untouched, original. And dilapidated means touched very much. Is it clear? Destroyed very much. So this is our right answer, dear students. Next one, 132, eccentric. You will have read this word many a time. Eccentric means unusual, peculiar, strange, अनोखा, अजनबी, abnormal. ये इसके मीनिंग है. और ऑप्शन ए centrifugal. You might have read centrifugal force, away from the center. Is it clear? Moving away from the center होता है ये इसका सिनोनिम है. एक्सेंट्रिक भी अपनी सोसाइटी से हटके अलग कोई ना कोई नई चीज करता है. तो दिस इज क्लोजेस्ट सिनोनिम, नॉट एंटोनिम. ऑप्शन बी अनकन्वेंशनल. कन्वेंशनल होता है जो रवायती रास्ते पे चले, और अनकन्वेंशनल जो डिफरेंट, नई चीज, अनोखा, बागी जिसे कहते हैं. दिस इज आल्सो सिनोनिम. कन्वेंशनल हो गया जी कंजर्वेटिव, जो पुराने रास्ते पे चले. दिस इज एंटोनिम. एंड ऑप्शन डी प्रिवेंटिव डिफेंसिव होता है, ये कोई इसका मीनिंग नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज अवर राइट एंटोनिम. एक्सेंट्रिक हो गया जी अनयूजुअल, और कन्वेंशनल हो गया यूजुअल, ट्रेडिशनल, रस्मी. दिस इज अवर आंसर. 133, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यू माइट हैव रेड, इट मींस रेजिस्टेंस, रबिंग. इज इट क्लियर? But sometimes there can be a friction between two friends. Then what does it mean? That there is not understanding, disharmony, चपकलिश जिसे हम कहते हैं. तो दोनों एंगल से मीनिंग को देखेंगे. ऑप्शन ए रबिंग, इंप्रेशन, कॉपी करना. ऑप्शन बी एनोमली. एनोमली इरेगुलरिटी को कहते हैं, किसी चीज में कोई तब्दीली, चेंज आ रही हो, उसको कहते हैं, बिहेवियर में हो सकती है. कॉन्ग्रुइटी, हार्मनी, एकॉर्ड, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं. ऑप्शन डी ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन मीन मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, चेंज. सो फ्रिक्शन और रबिंग तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है. एनोमली है वो इरेगुलरिटी हो गया. कॉन्ग्रुइटी, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये उस सेंस में यूज हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्रेंड्स, डिसहार्मनी, और कॉन्ग्रुइटी और हार्मनी. दिस इज राइट एंटोनिम, ऑप्शन सी. फ्रिंज्ड. फ्रिंज्ड मीन्स एडिशनल, डेकोरेटिव, जो किसी भी चीज में मजीद उसके इजाफा कर रहा हो, ठीक है. ऑप्शन ए अनटाइडी, डिसऑर्डरली, मडल्ड. ऑप्शन बी ऑर्नेट, डेकोरेटेड, इट इज इट्स सिनोनिम, इजाफी चीज जो आमतौर पर फ्रिंज ड्रेस के साथ एडिशनल झालर जो लगाई जाती है उसको कहते हैं, डेकोरेटिव होता है ये. लूसिड मीन्स आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, क्लियर, ग्लिसनिंग, ग्लीमिंग, शाइनिंग. सो बी इज इट्स सिनोनिम. But untidy, that is not decorated, that is our right answer. That is right antonym, dear students, option A. 135, last one, haphazardly. Dear students, again haphazard, haphazard means danger, haphazardly. So chaotically, randomly, अफरा तफरी में. ऑप्शन ए chaotically इसका मीनिंग है, ठीक है, खतरनाक हालत में, फैला हुआ. अनटाइडली, कंफ्यूजली. ऑप्शन बी सिस्टमैटिकली. सिस्टमैटिकली मतलब होता है मैथोडिकली, थॉरोली. ऑप्शन सी पेरिलसली, पेरिल. Peril also means danger. Perilously means dangerously. It is its synonym, not antonym, and we have to find the antonym.
Hurriedly also means quickly, speedily. So, dear students, only one word is giving correct angle of the antonym systematically. So, option B, systematically, is our right answer. Yes, dear students, hope you will have done correct today. Your more answers will have been correct. आज आपका स्कोर ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि अब वोकैबुलरी का दूसरा टेस्ट था. And I hope you will continue in the same. Keep on increasing your marks, keep on increasing your score. Goodbye. Allah Hafiz.